Okay, students, on last lecture we were discussing the minimization of DFA, and this is the first slide which we have discussed yesterday. So through this, I will just go through a quick revision of what we have done yesterday. Okay, so we have discussed in what cases we can minimize the DFA. So where the equivalent states are available, only in those cases we will be able to reduce the number of states in our DFA and we can minimize our DFA. Okay. And as our minimization process is dependent on the equivalent states, so there is one definition of the equivalent we have seen, and then we have seen that to find, as per this definition, it is not possible to find two equivalent states. As for this we have to check the infinite number of strings. Okay, so we have gone to the k equivalent relationship, so which is a little bit different. So now through this k equivalent relationship, we have discussed their properties. Number one property for both the relation is that equivalent and k equivalent, both the relations are the equivalence relations, so they are reflexive, symmetric, and transitive. Number two, that these equivalence relations induce partition. So if we have a full set, so it will partition these into the mutually exclusive subsets. Okay, so we will call these sets as pi 0, pi 1, pi 2, and so on. So if the value of k is 0, then it will be called pi 0. If the value of k is 1, then it is called pi 1. If the value of k is 2, then it is called pi 2. So in general, if for k we call it as pi k, and for equivalent relationship we call it as pi. Then the third relationship was that if q1 and q2 are k equivalent, then for all k greater than or equal to 0, then q1 and q2 are also equivalent. So this is the process by which we can find out the equivalent relationship from the k equivalent relationship. So if two states, we check for k equal to 0, 1, 2, 3, and so on up till infinity, that they are k equivalent, then they will also be the equivalent one. Again, it is equally difficult as to find the equivalent classes, because again we have to check the infinite number of possibilities. Now P4 is that Q1 and Q2 are k plus 1 equivalent. If they are k equivalent, so this is showing the dependency. If two states are suppose 2 equivalent, then they must be 1 equivalent, and because they are 1 equivalent, so they must be 0 equivalent also. So if we are talking about k plus 1 equivalent, so meaning thereby on all lower levels those two states were equivalent. Okay. Then P5, last one, this is the termination condition. When we will terminate our process, so what we will do, our process will be something like this. If from k equal to 0, we will start finding the k equivalent classes. So first of all, we will find the 0 equivalent classes. So basically what we will do, we will find the pi 0. From pi 0, then we will computing the pi 1. Okay, and from pi 1, then we will be computing the pi 2. And then from pi 2 to pi 3 and so on, जब तक कि हमें pi k equal to pi k plus 1 नहीं मिल जाता. And this we are guaranteed to find. Why we are guaranteed to find? Because the set over which we are working is a finite set. If pi 0 is a partition, then pi 1 will be different only when some partition in the pi 0 again breaks. उसको वापस तोड़ करके हम कोई कम से कम एक ब्रैक जो है होना चाहिए, तभी पाई 0 एंड पाई 1 अलग होंगे. ओके, तो जब भी पाई 0 एंड पाई 1 अलग, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे मैक्सिमम, सपोज ये 5 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम 5 बार में जो है ये सारे एलिमेंट्स अलग हो जाएंगे. तो 5 से ज्यादा इटरेशन इसके पॉसिबल नहीं है. सो लेस देन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 5, समवेयर यू विल फाइंड दैट पाई k इज इक्वल टू पाई k प्लस 1. So this is the basis of this condition, and when such a condition will arise that pi k is equal to pi k plus 1, then this pi k will denote us our final equivalence classes. So basically pi k will be equal to pi. So it is the final set of equivalence classes. Okay. So and then only thing remains, which is that how to find from k equivalent classes to the k plus 1 equivalent classes. So the next result, this result says that
two states Q1 and Q2 are K plus 1 equivalent. Number one, if they are K equivalent, ये तो हमें पिछले P4 प्रॉपर्टी से मालूम ही है. The second thing is कि डेल्टा Q1 एंड डेल्टा Q2 है, मीन्स अगर उन दोनों स्टेट्स पे मैं कोई सिंबल, जो इनपुट सिंबल है, जितने भी इनपुट सिंबल है, सारे के सारे इनपुट सिंबल एक एक करके अप्लाई करके देखता हूँ, और ये सेम इनपुट सिंबल अप्लाई करने पे उनकी जो भी स्टेट्स मेरे को मिल रही हैं, अगर वो स्टेट भी K इक्विवेलेंट है, यानी कि वो प्रीवियस पार्टीशन के लेवल पे सेम पार्टीशन में एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ये दो स्टेट्स हैं Q1 एंड Q2, ये K+1 यानी कि नेक्स्ट लेवल पर भी साथ आएंगी. आफ्टर दिस, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस, आई हैव टेकन वन शॉर्ट एग्जांपल एंड आई हैव शोन दैट through this, following this process, we can minimize our DF, and the result which we were obtaining in this minimization process was correct. So this is giving us the confidence that process is correct. Now during the discussion, I felt that some of you have not understood the process correctly. So just to give a brief of the process, I have written it something like this. So you can go through this process. This is the construction process of minimized automaton. This is basically a 4-step process. Step 1, step 2, step 3, and step 4. Step 1 is what? We will construct pi 0. What we will do? We will construct the pi 0. First of all, we will construct pi 0. And pi 0 we can construct by the definition of the G0 equivalent. So pi 0 will be equal to Q10 and Q20. So there will be two subsets. यानी कि जो हमारा original set था states का Q, that has been divided into two subsets, Q10 and Q20. So this is the first partition and this is the second partition. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो lower subscript है ये partition number को show कर रहा है, और जो upper subscript है ये show कर रहा है कि किस level का partition है. वैसे भी बाहर से भी पता चल जाएगा, if it is pi 0 तो it is the 0th level partition, is it? So we will find pi 0 such as Q10 and Q20, where Q10 is the set of final states and Q20 is the set of non-final states. यहाँ पे आप पलट भी सकते हैं इसको, आप चाहें तो Q10 को set of non-final states ले लें और Q20 को set of final states ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मीन्स ये जो पार्टीशन है, ये आप कोई सा भी पार्टीशन पहले लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, द ओनली थिंग इज कि our original set Q will be divided into two partitions, and one partition will contain all the final states and another partition will contain all the non-final states, is it? So this is our first step. So now we have found pi 0. Now step 2 is a repetitive step. It is the step, it says that construction of pi k plus 1 from pi k for k is equal to 0, 1, 2 and so on. When k is equal to 0, so we are making k plus 1, pi k plus 1, means we are finding pi 1 from pi 0. When the value of k is 1, then we are finding pi 2 from pi 1. So in this manner, we will keep on repeating this process, which is given in the step 2, to find pi k plus 1 from pi k. And this we will repeat until pi k is equal to pi k plus 1. जब तक ये कंडीशन हमें नहीं मिल जाएगी, तब तक हम इस स्टेप 2 को रिपीट करते रहेंगे. इज इट? अब इस स्टेप 2 में हमें करना क्या है? स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं? वी आर वर्किंग ऑन ए पर्टिकुलर पार्टीशन पाई के, यानी के लेवल के पार्टीशन पे हम वर्क कर रहे हैं. जब के लेवल के पार्टीशन पे वर्क करें तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे. हम उनमें से किसी भी एक एलिमेंट को मान लेते हैं कि दैट एलिमेंट इज क्यू आई के. सो वी हैव टेकन द ith एलिमेंट ऑफ दिस kth पार्टीशन. ओके, हमारा पाई के कुछ ऐसा होगा ना, पाई के इज इक्वल टू, एक हमारा होगा just okay, okay, this pi k will be something like this. There will be a partition containing certain elements. I say that it is q1k. Similarly, there will be another partition containing certain elements. I will say it will be q2k. इसी तरह से तमाम सारे पार्टीशंस होंगे इसके अंदर. उन्हीं में से कोई एक सबसेट हमारा है जिसको हम कह रहे हैं क्यू आई के. Is it something like this? So we are talking about this term.
सो जितने भी हमारे सबसेट्स इस पाई के में अवेलेबल थे उनमें से कोई सा भी एक सबसेट क्यू आई के हमने ले लिया, इज इट। अब इस क्यू आई के में कुछ एलिमेंट्स होंगे, अब क्यू आई के में कुछ एलिमेंट्स होंगे, स्टेट्स होंगी इसके अंदर, तो उन स्टेट्स में से कोई सी दो स्टेट हमने ले ली, Q1 एंड Q2, इज इट। कोई सी दो स्टेट हमने ले ली Q1 एंड Q2। अब हम क्या चेक करते हैं कि ये Q1 और Q2 अगर यहाँ पर हैं तो इसका मतलब क्या है, Q1 और Q2 के इक्विवेलेंट है। अगर Q1 और Q2 दोनों इस सेम इक्विवेलेंस क्लास में, इस सेम सबसेट में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, पाई के अंदर ये एक पर्टिकुलर सेट में साथ साथ एग्जिस्ट कर रही है। Q1 भी यहीं पे है और Q2 भी यहीं पर है, सपोज। सो दैट्स व्हाई Q1 एंड Q2 आर के equivalent. Now we have to check whether they will be k plus 1 equivalent or not. Okay, so for checking that they are k plus 1 equivalent or not, what we'll do, we'll check delta Q1a and delta Q2a for every a belonging to sigma. यानी कि जितने भी इनपुट सिंबल्स हैं वो सब एक एक करके हम Q1 और Q2 दोनों पर अप्लाई करके देखेंगे। सपोज कोई एक सिंबल a है, उसको मैंने Q1 पर भी अप्लाई किया और Q2 पे भी अप्लाई किया, इससे मेरी दो स्टेट जनरेट होगी। एक स्टेट यहाँ से जनरेट होगी, सपोज मैं कहता हूँ R1, दूसरी स्टेट मेरी सपोज यहाँ से जनरेट हुई, सपोज R2। ओके, अब मैं चेक करूंगा ये R1 एंड R2 अगर के इक्विवेलेंट हैं और ऐसा हर ए के लिए है, तो मैं क्या कहूंगा, Q1 और Q2 मेरे k plus 1 इक्विवेलेंट भी हैं। अब ये कैसे चेक करूंगा कि R1 और R2 के इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है? आई विल जस्ट लुक एट दिस पाई के कि R1 इसमें कहाँ मिलता है। सपोज R1 मुझे इस वाले सेट में मिलता है Q2 के में, ठीक है, और सपोज R2 भी मुझे इसी वाले सेट में मिल गया Q2 के में, यानी कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस ए के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं अगले ए के लिए चेक करूंगा, इसी तरह से सबके लिए चेक करते जाऊंगा। लेकिन सपोज किसी भी स्टेज पे अगर मेरे को R1 सपोज इस सेट में मिला और R2 सपोज इस सेट में मिला, यानी कि अलग अलग सबसेट में मिले, तो वहीं पे मैं अपने प्रोसेस को स्टॉप करूंगा और कहूंगा कि Q1 एंड Q2 आर नॉट k plus 1 इक्विवेलेंट, दे आर नॉट k plus 1 इक्विवेलेंट, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे, यानी कि पाई k plus 1 में वो साथ साथ नहीं आएंगे। तो इस तरह से यानी कि जो साथ साथ आएंगे उनको मैं पाई k plus 1 में रखता जाऊंगा, यानी कि एक तरह से समझिए क्यू आई के फर्दर पार्टीशन हो जाएगा, या तो ये एज इट इज आएगा पूरा का पूरा, या ये फर्दर पार्टीशन हो जाएगा। अब जो ये फर्दर पार्टीशन हो जाएगा तो इसके जो ये फर्दर पार्टीशन है, इसके जो फर्दर पार्टीशन है ये कहाँ आएंगे, ये पाई के plus 1 में आएंगे। तो इस तरह से मैं पाई के से पाई के plus 1 फाइंड आउट कर सकता हूँ। So this is the process of finding pi k plus 1 from pi k. So what we are doing, we are finding out whether delta Q1a and delta Q2a are in same equivalence class in pi k or not. If it is true for every a belonging to sigma, then Q1 and Q2 are k plus 1 equivalent, is it? And then we will repeat this process for every Qi k. अभी देखिए मैंने इस वाले पार्टीशन के एलिमेंट्स को लेकर के जो जो साथ आ रहे थे नेक्स्ट लेवल पे उनको साथ रखा, जो अलग हो रहे थे वो अलग रखे, तो इससे मेरे पार्टीशन क्रिएट हो गए। सेम प्रोसेस मुझे जितने भी पार्टीशन इस पाई के में है हर एक पर अप्लाई करना पड़ेगा। इस पे भी करूंगा, इस पे भी करूंगा, सब पर अप्लाई करूंगा, तो मुझे पाई के plus 1 के सारे एलिमेंट्स जो है मिल जाएंगे। सो दिस इज माई स्टेप 2, दिस इज द मेजर स्टेप विच वी हैव टू परफॉर्म in finding the equivalence classes. I hope it is clear to everyone. Class. Class? Yes, sir. Okay. So we will repeat this step, and step 3 is nothing but it is saying that we have to repeat step 2 up till we do not find pi k is equal to pi k plus 1. अब देखिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले pi 0 फाइंड किया, फिर उसके बाद पाई 0 से मैंने पाई 1 कैलकुलेट किया, चेक किया पाई 0 पाई 1 सेम है क्या। अगर दोनों सेम आ गए तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस, एंड इन दिस केस पाई 0 विल बी द फाइनल सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा यानी कि पाई 1 से पाई 2 कैलकुलेट करूंगा, पाई 1 से पाई 2 कैलकुलेट करूंगा, वापस चेक करूंगा कि पाई 1 और पाई 2 सेम है कि नहीं। अगर पाई 1 और पाई 2 सेम है देन पाई 1 विल गिव मी द फाइनल सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो वापस फिर आगे बढ़ूंगा, पाई 2 की हेल्प से पाई 3 कैलकुलेट करूंगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से मैं कब तक करता जाऊंगा, जब तक कि मेरा पाई के इज इक्वल टू पाई के plus 1 नहीं हो जाएगा, इज इट। जब मेरा पाई के इज इक्वल टू पाई के plus 1 हो गया तो उस केस में जो पाई के है ये मुझे मेरा फाइनल सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, यानी कि जो पाई के आया है वही मेरा क्या है, फाइनल पाई।
फाइनल सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। और मेरी स्टेट कैसे बनेगी? स्टेट बनेगी इस फाइनल सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस या पाई के कुछ भी कह लीजिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग। सो दिस इज द स्टेप 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिमाइज्ड ऑटोमेटन। जब हमें इक्विवेलेंस क्लासेस मिल गई तो अब हम मिनिमाइज्ड ऑटोमेटन को जो है कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे। इस मिनिमाइज्ड ऑटोमेटन में स्टेट्स कौन सी होंगी? स्टेट्स इन दिस मिनिमाइज्ड ऑटोमेटन will be the equivalence classes obtained in step 3। यानी कि यहाँ जो मैंने इक्विवेलेंस क्लासेस निकाली हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक एक स्टेट मेरी आ जाएगी। यानी कि एक इक्विवेलेंस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टेट। किसी इक्विवेलेंस क्लास में आपका सिंगल एलिमेंट होगा से Q1, कोई इक्विवेलेंस क्लास आपकी ऐसी भी होगी जिसमें आपके मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, सपोज Q2, Q3 लाइक दिस, देन सपोज Q4 समथिंग लाइक दिस। सपोज इस तरह का आपकी कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी तो एक स्टेट तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, एक स्टेट इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी और एक स्टेट इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी। यानी कि टोटल अगर 3 इक्विवेलेंस क्लासेस आई हैं आपकी तो 3 ही स्टेट आपके मिनिमाइज्ड ऑटोमेटन में आएंगी। सो स्टेट्स इन द मिनिमाइज्ड ऑटोमेटन विल बी द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑब्टेन्ड इन द स्टेप 3। तो हमें स्टेट्स पता चल गई। अब हमें क्या करना है? स्टेट टेबल बना लेनी है। सो द स्टेट टेबल इज ऑब्टेन्ड by replacing a state Q by the corresponding equivalence class। अब मेरे पास जहां पे भी Q1 आ रहा है वहां पे मैं Q1 ही लिखूंगा, लेकिन जहां भी मेरे पास Q2 आया है वहां मैं क्या लिखूंगा? Q2 Q3। सिमिलरली जहां Q3 आया वहां भी क्या लिखूंगा? Q2 Q3। तो इस तरह से मेरी जो DFA की स्टेट टेबल थी वो मिनिमाइज DFA की स्टेट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। इज इट? तो इस तरह से मैं मिनिमाइज DFA की स्टेट टेबल, और जब एक बार आपको स्टेट टेबल मिल गई तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया? मिनिमाइज्ड DFA मिल गया। सो दिस इज द होल प्रोसेस विच हैज टू बी फॉलोड टू फाइंड द मिनिमम स्टेट ऑटोमेटन। आई होप नाउ इट इज क्लियर। नाउ विल टेक एग्जाम्पल। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू द एग्जाम्पल क्लास। Is there any doubt? No. Okay. So I am moving on the example. So this is the example. You just look at this example. मैंने आपको बताया था जब भी हम इस yes, somebody wants to say something. Somebody wants to say something. अगर कुछ नहीं कहना तो you can mute your mic. Okay. सो दिस इज द एग्जाम्पल। और मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर हमें जो है स्टेट टेबल दी हुई है डायरेक्ट, तब तो हम उसी स्टेट टेबल से वर्क करेंगे। लेकिन अगर हमें ग्राफ के फॉर्म में दिया, ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ, तो उसे हमें पहले स्टेट टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो सपोज हमें ये प्रॉब्लम स्टेट डायग्राम के टर्म्स में दी हुई है, तो हम इस स्टेट डायग्राम को सबसे पहले स्टेट टेबल में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट अस सी Q0 on 0 moves to Q1 and 1 moves to Q5। सो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, इट मूव्स टू Q1 and 1 moves to Q5। Is it? Now Q1 on 0 and 1, where it moves? Q1 on 0 moves to Q6. On 1 it moves to Q2. So it is Q6 and Q2. Is it? Now Q2 on 0 moves to Q0 and on 1 it remains to itself Q2. So it is Q0 and it is Q2. Is it? Now Q3 on 0 moves to Q2 and 1 moves to Q6. So it is Q2 and Q6. मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, अगर कहीं प्रोसेस में कहीं भी बाई चांस मेरे से मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा बीच में। ओके। नाउ Q4 on 0 goes to Q7 and 1 goes to Q5. So it is Q7 and Q5. Now Q5 on 0 goes to Q2 and 1 goes to Q6. So it is Q2 Q6. So it is Q2 and Q6. Now Q6 on 0 to itself and on 1 to Q4. So it is Q6 Q4. It is Q6 and Q4. Then Q7 on 0 goes to Q6 and 1 goes to Q2. So it is Q6 Q2.
इट इज Q6 एंड Q2। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने ट्रांजिशन डायग्राम को ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब ट्रांजिशन टेबल में जब कन्वर्ट कर लिया, अब मैं अपने प्रोसेस को स्टार्ट करूंगा। मेरे प्रोसेस में क्या है, पहला स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई जीरो। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई जीरो कैसे, फाइनल स्टेट अलग और नॉन फाइनल स्टेट अलग, इस तरह से मैं पाई जीरो बनाऊंगा। सो आई विल फाइंड पाई जीरो। सो पाई जीरो इज फाइनल स्टेट एक साथ। फाइनल स्टेट मेरी क्या है, केवल एक ही फाइनल स्टेट है Q2। सो ये तो आएगी एक साथ और बाकी सारी स्टेट अलग आएंगी। बाकी सारी स्टेट में क्या बचा मेरा, Q0, Q1, Q2 नहीं आएगा क्योंकि Q2 जो है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स में आ गया। Q1, देन Q3, देन Q4, देन Q5, देन Q6 एंड देन Q7। सो ये मेरा दूसरा पार्टीशन हो गया। तो पहला पार्टीशन जिसको मैं कह देता हूँ Q10, दूसरा पार्टीशन जिसको मैं कह देता हूँ Q20, इज इट। सो Q20 में ये सारे एलिमेंट्स हैं और Q10 में केवल ये एलिमेंट है। तो मेरा सबसे पहला स्टेप पाई जीरो फाइंड आउट हो गया। अब मुझे क्या करना है, स्टेप 2। अब मुझे क्या करना, पाई के प्लस 1 फाइंड करना पाई के की हेल्प से। अब एक k इज इक्वल टू 0 के लिए पार्टीशन मेरे पास है, तो पाई 1 आई विल फाइंड आउट। ओके, सो पाई 1 I will find out। ओके, अब पाई 1 किससे फाइंड करूंगा, पाई 0 की हेल्प से। अब देखिए पाई 0 में ये एक सेट है, ये सब सेट है, ये एक एलिमेंट है Q10 जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है। अब ये फर्दर तो पार्टीशन हो नहीं सकता, यानी कि ये तो जहां भी आएगा एज इट इज ऐसा ही आएगा। तो इसको तो मैं ऐसे ही उतार लेता हूँ, ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ। सो इट विल बी सॉरी इट इज Q2। सो दिस इज माई Q11। इज इट। आप देखिए यहाँ नाम चेंज हो गया। यहाँ ये पार्टीशन नंबर कौन सा था, Q10। यहाँ ये पार्टीशन नंबर कौन सा होगा, Q11, क्योंकि पहला पार्टीशन है लेकिन फर्स्ट लेवल का पार्टीशन है। इज इट। सो इट इज द एलिमेंट, ये जो ऊपर वाला सुपर स्क्रिप्ट है ये शो करेगा कि आपके कौन से पार्टीशन का एलिमेंट है। अगर ऊपर 0 है तो ये 0th पार्टीशन का एलिमेंट है, अगर ऊपर 1 है तो ये फर्स्ट पार्टीशन का एलिमेंट है। इज इट। अब आते हैं इस जगह पर। अब Q0, Q1, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, इनमें से कौन से एलिमेंट फर्स्ट लेवल पे यानी कि पाई 1 में साथ आएंगे और कौन से अलग चले जाएंगे, दिस वी हैव टू चेक। ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक चेक लगाते हैं सिस्टम से, जैसे Q0, Q1, फिर Q0, Q3, फिर Q0, Q4, फिर मतलब Q0 को मैं हर एक के साथ चेक कर लूंगा, जो जो साथ आने होंगे वो सब एक साथ आ जाएंगे। इज इट। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ Q0 एंड Q1। सो Q0 एंड Q1 सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, 0 पे क्या आता है। सो Q0 on 0 एंड Q1 on 0। सो Q0 on 0 is Q1 और Q1 on 0 is Q6। So it is Q1 Q6। So it is Q1, Q6। अब मैं चेक करूंगा कि Q1 और Q6 प्रीवियस पार्टीशन में साथ थे या नहीं थे। अगर ये प्रीवियस पार्टीशन में साथ थे तो मैं अपना प्रोसेस आगे बढ़ाऊंगा, वरना यहीं पे डिसाइड कर लूंगा कि Q0 और Q1 इक्विवेलेंट नहीं है, 1 इक्विवेलेंट नहीं है। ये 0 इक्विवेलेंट तो है। 0 इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि Q0 और Q1 इस पाई 0 में एक साथ एक ही पार्टीशन के अंदर है, तो Q0 एंड Q1 दे आर 0 इक्विवेलेंट। सिमिलरली Q0 Q3, Q0 Q4, Q1 Q3, Q1 Q4, Q1 Q5, Q3 Q6, ये जितने भी कॉम्बिनेशन इनके बनेंगे ये सारे के सारे आपस में क्या है, दे आर 0 इक्विवेलेंट। इज इट। तो अब ये 0 इक्विवेलेंट तो है, Q0 Q1 0 इक्विवेलेंट है, मगर ये 1 इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे, दिस आई हैव टू चेक। मींस कि यहाँ इस पार्टीशन में पाई 1 में ये साथ आएंगे या अलग आएंगे, दिस आई हैव टू चेक। सो Q0 Q1 on 0 आई हैव चेक्ड, इट हैज कम Q1 Q6। सो Q1 और Q6 कहाँ है, देखिए Q1 यहाँ है Q20 में, Q6 कहाँ है, ये भी इसी पार्टीशन में है Q20 में, सेम पार्टीशन में, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने एक इनपुट के लिए तो चेक कर लिया, 0 के लिए मेरे पास कितने इनपुट है, 2 इनपुट है। मैं क्या करूंगा, इसको 1 के लिए और चेक करूंगा। अब 1 यानी कि Q0 on 1 एंड Q1 on 1 क्या आएगा। सो Q0 on 1 इज Q5, Q1 on 1 इज Q2। सो क्या है, Q5 Q2। सो Q5 Q2 इज इट। बल्कि इसको मैं एक काम करता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, ये यहीं से आएगा।
Q0 ऑन Q1, मैं Q1 Q6 को नहीं चेक कर रहा हूँ 1 पे, मैं Q0 Q1 को चेक कर रहा हूँ 1 पर. इज इट? सो इट इज Q5 Q6, Q5 Q2. सो Q5 कहाँ पर है? यहाँ है Q2 0 में. Q2 कहाँ है? यहाँ है Q1 0 में. दोनों अलग अलग पार्टीशन में चले गए, एक इस पार्टीशन में आया और दूसरा इस पार्टीशन में. यानी कि यहाँ मेरी डेस्टिनी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई. जैसी डेस्टिनी डिफरेंट हुई वैसे ही मुझे पता चल गया Q0 और Q1 ये आपस में वन इक्वलेंट नहीं, यानी कि ये साथ नहीं आएंगे, ये आपस में साथ नहीं आएंगे. तो यानी कि Q1 Q2 आपस में साथ नहीं आएंगे. क्रॉस लगा लेता हूँ यहाँ पे. ठीक है, इज इट? अब मैं Q0 को चेक करता हूँ नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, Q3 के साथ. Q0 Q1 चेक किया, अब Q0 Q3 को चेक कर रहा हूँ सिमिलर मैनर में. Q0 Q3 अगर 0 पर चेक कर रहा हूँ, so Q0 on 0 and Q3 on 0. Q0 on 0 is Q1, Q3 on 0 is Q2, Q1 Q2. So it is Q1 Q2. Q1 कहाँ है? यहाँ पर है इस वाले पार्टीशन में Q2 0 में. और Q2 कहाँ है? यहाँ है इस वाले पार्टीशन में Q1 0 में. दोनों अलग अलग पार्टीशन में है. यानी कि अब आपको इसको 1 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं, यहीं पे डिसाइड हो गया कि Q0 और Q3 साथ नहीं आ सकते. Q0 और Q3 साथ नहीं आ सकते. आई विल चेक द नेक्स्ट वन, से Q0 एंड नेक्स्ट कौन सा है? Q3 के बाद Q4. Q0 Q4 इनको चेक करते हैं. इसको 0 पे चेक करते हैं. Q0 Q4 on 0. Q0 on 0 is Q1, Q4 on 0 is Q7. So it is Q1 Q7. Q1 Q7. Q1 और Q7 देखिए, Q1 यहाँ है और Q7 भी यहाँ है, सेम पार्टीशन में है दोनों, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं. अब मैं क्या करता हूँ, इसको 1 पे चेक करता हूँ. इसी तरह से इसको 1 पे चेक करता हूँ, यानी कि Q0 on 1 and Q4 on 1. Q0 on 1 is Q5 and Q4 on 1 is also Q5. तो ये तो स्टेट ही सेम है, तो दो अलग अलग पार्टीशन में हो ही नहीं सकती. सो इट इज Q5 Q5, यानी कि ये तो सेम पार्टीशन में होगी, चाहे जिस पार्टीशन में, चाहे इधर हो चाहे इधर हो. बाई चांस ये इसी पार्टीशन में है. ठीक है, सो सेम पार्टीशन में, यानी कि यहाँ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि Q0 और Q4 साथ आएंगे. तो मैं यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ. देखिए Q0 इसके साथ Q4 आएगा. इज इट? अब उसके बाद चेक करता हूँ Q0 के साथ Q5 आएगा क्या? Q0 Q5 चेक करिए. ऑन 0, Q0 on 0 is Q1 and Q5 on 0 is Q2. एक Q1 और दूसरा Q2, एक Q1 और दूसरा Q2. Q1 यहाँ पर मौजूद है और Q2 यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग है, यानी कि ये साथ नहीं आ सकते. तो Q0 Q5 साथ नहीं आएंगे. देन चेक Q0 Q6. Q0 Q6 on 0. So Q0 on 0 is Q1 and Q6 on 0 is Q6. So it is Q1 Q6. Q1 Q6. Q1 Q6. So Q1 यहाँ है, Q6 भी यहाँ है, नहीं सेम पार्टीशन में, 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं 1 पे चेक करूंगा. So Q0 and Q6 on 1. Q0 on 1 is Q5 and Q6 on 1 is Q4. So it is Q5 Q4. So Q5 भी यहाँ है और Q4 भी यहाँ सेम पार्टीशन में है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि दोनों ही इनपुट के लिए जहां पे हम पहुंचे वो K इक्विवेलेंट है, तो ये क्या आएंगे? साथ आएंगे. नहीं, Q0 Q6 भी साथ आएगा, तो यहाँ Q6 मैंने लिख दिया, Q0 Q6 साथ आएंगे. अब देखिए, जैसे ही मैंने डिसाइड किया Q0 Q4 साथ आएंगे, Q0 Q6 साथ आएंगे, वहीं ये डिसाइड ऑटोमेटिक हो गया कि Q4 और Q6 भी साथ आएंगे. आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए, बट बिकॉज हमारे जो ये रिलेशंस थे ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव थे, तो इसका मतलब ये था कि Q0 Q4 साथ आ रहे हैं एंड Q0 Q6 साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब Q4 Q6 भी साथ आएंगे. इज इट? देन Q0 Q7 को चेक कर लेते हैं 0 पर. So Q0 on 0 is Q1 and Q7 on 0 is Q6. So Q1 Q6, Q1 Q6 सेम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Q1 Q6 सेम में है, तो हम इसको किस पे चेक करेंगे? 1 पर चेक करेंगे. Q0 on 1 is Q5 and Q7 on 1 is Q2. It is Q5 Q2. अब ये दोनों अलग अलग पार्टीशन में, देखिए Q5
इस पार्टीशन में Q2 0 में यहाँ आएगा, और Q2 जो है इस Q1 0 में है, ये यहाँ आएगा, अलग अलग है, तो यानी कि ये Q1 Q0 और Q7 साथ नहीं आ सकते। अब देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक सब चेक कर ली, तो Q0 के साथ कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी वो मैंने यहाँ बना ली, ये मेरी यहाँ क्लोज हो गया। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया Q21, यानी कि सेकंड पार्टीशन। अब आप देखिए ये वाला पार्टीशन में एक पार्टीशन अलग होकर के आ गया यहाँ, ठीक है। अब जो बची हुई स्टेट्स हैं, अब देखिए इसमें Q0 आ गया था, इसमें Q4 आ गया था, इसमें Q6 आ गया था। अब बची कौन सी है, Q1 Q3 Q5 एंड Q7। अब ये साथ आएंगी, आपस में एक दूसरे के साथ आएंगी या नहीं आएंगी, देखिए इनमें से किसी के साथ तो नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस जो बची हुई एलिमेंट्स हैं उनको सिस्टमेटिक इसी तरह से चेक करता हूँ। सबसे पहले किसको चेक करता हूँ, Q1 Q3, फिर Q1 Q5, फिर Q1 Q7। ओके, तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ Q1 Q3 को चेक करता हूँ सबसे पहले 0 पर। So Q1 on 0 and Q3 on 0. Q1 on 0 is Q6, Q3 on 0 is Q2. So Q6 Q2, it is Q6 Q2. Q6 is here and Q2 is here, अलग अलग है, तो यानी कि ये साथ नहीं आ सकते, Q1 Q3 साथ नहीं आएंगे। अब चेक करता हूँ Q1 Q5 on 0. So Q1 on 0 is Q6 and Q5 on 0 is again Q2. So it is Q6 Q2 the same one, यानी कि Q6 मेरा इधर है इस पार्टीशन में और Q2 मेरा इधर है इस पार्टीशन में, तो ये साथ नहीं आएंगे, ये साथ नहीं आएंगे। आई विल चेक Q1 Q7, Q1 Q7 on 0. So Q1 on 0 is Q6, Q7 on 0 is also Q6, so it is Q6 Q6, तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं यहाँ पे, Q6 Q6 ये तो सेम पार्टीशन में ही आएंगे। तो अब मैं अगले के लिए चेक करूंगा, यानी कि 1 के लिए चेक करूंगा। सो Q1 और Q7 on 1, Q1 on 1 is Q2, Q7 on 1, Q7 on 1, Q7 on 1 is also Q2. So again it is the same state, Q2 Q2। अब Q2 Q2 ये दोनों किस में है, सेम में होंगे, यस यहाँ पर है, इस वाले में है, सेम में है। अब आप यहाँ एक चीज और देखिए कि 0 पे मुझे Q6 मिला था, यानी कि ये वाला पार्टीशन मिला था, 1 पे मुझे Q2 मिला, यानी ये वाला पार्टीशन मिला। डिफरेंट इनपुट सिंबल पे डिफरेंट पार्टीशन में जा सकते हैं, बट सेम इनपुट सिंबल पे सेम पार्टीशन में होने चाहिए। अगर सेम इनपुट सिंबल पे डिफरेंट पार्टीशन में है तो ये साथ नहीं आएंगे, इज इट। सो चूंकि यहाँ Q6 ये सेम पार्टीशन में था, कोई प्रॉब्लम नहीं, Q2 ये भी सेम पार्टीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सो दैट्स वाई Q1 और Q7 साथ में आएगा, इज इट। सो Q1 और Q7 ये साथ में आएंगे, इज इट। सो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया Q31, ये मेरा थर्ड पार्टीशन मिल गया मेरे को, थर्ड पार्टीशन मिल गया मेरे को मेरे इसका, तो यानी कि दूसरा पार्टीशन मेरे को ये मिल गया, यानी कि अब मेरा Q1 और Q7 ये भी जो है अलग पार्टीशन में आ गया। अब बचे Q3 Q5, ये चेक करना है अब ये दोनों साथ आएंगे या दोनों अलग अलग आएंगे। सो सिंपली आई हैव टू चेक Q3 एंड Q5, सो आई विल चेक Q3, Q5 on 0. So Q3 on 0 is Q2, Q5 on 0 is also Q2। आप देखिए it is Q2 Q2, तो सेम पार्टीशन में होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इट। अब 1 पे चेक करेंगे, Q3 on 1 is Q6, Q5 on 1 is Q6, so both Q6 Q6। अब Q6 Q6 चूंकि तो सेम स्टेट है तो सेम ही पार्टीशन में आएगी, सेम पार्टीशन में यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये, यानी कि ये दोनों भी साथ आएंगे। सो Q3 Q5 विल कम टुगेदर, सो Q3 Q5 will come together and this will be your Q4 1, is it। तो आप देखिए आपका जो पहला वाला पार्टीशन था पाई 0 का वो एज इट इज आया, चूंकि उसमें केवल एक ही एलिमेंट था, बट पाई 0 का जो दूसरा पार्टीशन था वो 3 पार्टीशंस में ब्रेक हो गया। पहले पार्टीशन में Q0 Q4 Q6 आए, दूसरे पार्टीशन में Q1 Q7 आए और तीसरे पार्टीशन में Q3 Q5 आए, इज इट। तो इस तरह से हमने क्या किया, पाई 0 से पाई 1 फाइंड आउट कर लिया। इज इट क्लियर और नॉट क्लास, ये क्लियर है? सर ओके सर एक्सक्यूज मी यस सर, ये
Q3 Q5 हम ऐसे भी तो चेक कर सकते थे ना, मतलब सर Q1 Q3 और Q1 Q5 है ना, तो सर इस मतलब प्रॉपर्टी लगा के Q1 Q3 देखिए, Q1 Q3 साथ नहीं आने हैं, Q1 Q5 साथ नहीं आने हैं, ठीक है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि Q3 Q5 साथ नहीं आएंगे। जो निगेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करेगी। आप देखिए इक्विवेलेंस क्लास साथ, इसका रिलेशन क्या है कि दे विल कम टुगेदर और नॉट। ओके, तो अगर Q1 Q3 साथ आ रहे हैं और Q1 Q5 साथ आ रहे हैं, तो Q3 Q5 साथ आएंगे ही आएंगे, जैसा कि आप कहें Q0 Q4 और Q6 में हुआ था। आपने ये थोड़ी चेक किया था Q4 Q6 साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, आपने केवल ये चेक किया Q0 Q4 साथ आएंगे, आपने केवल ये चेक किया Q0 Q6 साथ आएंगे, तो Q4 और Q6 तो ऑटोमेटिकली साथ हो गए, इज इट। लेकिन यहाँ पे जब आपने चेक किया Q1 Q3 साथ नहीं आएंगे और Q1 Q5 साथ नहीं आएंगे, इससे आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि Q3 Q5 भी साथ नहीं आएंगे। आप देखिए यहाँ हमने चेक किया तो Q3 Q5 साथ आ रहे हैं, इज इट। आप यहाँ चेक कर लीजिए Q4 और Q6 के लिए, दे विल कम टुगेदर, जस्ट चेक Q4 एंड Q6, Q4 एंड Q6 ऑन 0 इज Q7 एंड Q6, सो Q7 एंड Q6 सेम है, यानी 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद Q4 on 1 is Q5 and Q6 on 1 is Q4. So Q5 Q4. So Q5 Q4 ये भी सेम पार्टीशन में है, इज इट। यानी कि 1 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप Q4 Q6 को चेक करते तो भी वो साथ ही आते, इज इट। तो जब मैं जो साथ आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक साथ हो जाएंगे, क्योंकि Q0 Q4 के साथ है, Q0 Q6 के साथ भी है, तो Q4 और Q6 भी आपस में साथ होंगे। लेकिन यहाँ पे Q1 और Q3 साथ नहीं है। अब पता नहीं Q3 कहाँ है, Q1 और Q5 साथ नहीं है, पता नहीं Q5 कहाँ है। तो ये दोनों Q1 के साथ नहीं आएंगे, ये श्योर है, मगर ये आपस में साथ नहीं आएंगे, ये श्योर नहीं है। तो इसीलिए हमें Q3 Q5 को यहाँ चेक करना पड़ा कि Q3 Q5 साथ आएंगे नहीं आएंगे, और आप यहाँ देख रहे हैं कि Q3 Q5 साथ आ रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, तो ये हमने पाई 0 से पाई 1 फाइंड आउट कर लिया। अब सिमिलर मैनर, अब देखिए पाई 0 और पाई 1 क्या इक्वल है ना? इक्वल नहीं है। इसमें 2 पार्टीशन थे, इसमें 4 पार्टीशन हो गए, तो ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते। इज इट क्लियर? तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि मुझे अब पाई 1 से क्या फाइंड आउट करना है, पाई 2 फाइंड आउट करना है। तो अब मैं पाई 2 फाइंड आउट करूंगा। पाई 2 में भी अगेन पाई 1 किससे फाइंड आउट करूंगा और पाई 2 किससे फाइंड आउट करूंगा, विद द हेल्प ऑफ पाई 1। अब मैं पाई 0 को नहीं देखूंगा, अब मैं किसको देखूंगा, पाई 1 को देखूंगा। तो पाई 1 की हेल्प से मैं पाई 2 को फाइंड आउट करूंगा। सो अब मैं पाई 1 के पार्टीशंस देखना शुरू करता हूं। पहला पार्टीशन Q2, क्योंकि सिंगल एलिमेंट है तो फर्दर पार्टीशन हो ही नहीं सकता, तो ये पार्टीशन नेक्स्ट लेवल पे भी एज इट इज आ जाएगा Q2, और इसका नंबर क्या होगा मेरा, Q1 2, यानी कि ये फर्स्ट पार्टीशन सेकंड लेवल का, इज इट। देन अब Q0 Q4 Q6 ये लेवल 1 पे तो साथ थे, अभी लेवल 2 पे भी साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, दिस वी हैव टू चेक। ओके, तो चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, वापस वैसे ही चेक करेंगे, Q0 Q4 एंड Q0 Q6 करके चेक करते हैं। सो देखिए Q0 यहां से चेक करता हूं मैं, Q0 Q4 on 0, so Q0 on 0 and Q4 on 0, so it is Q1 and Q7, it is Q1 Q7। Q1 और Q7 कहाँ है, देखिए Q1 तो है इस वाले पार्टीशन में, Q31 में, इज इट। और Q7 का है वो भी यहीं पे है Q31 में, सेम पार्टीशन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं क्या चेक करता हूं, मैं इसको 1 के लिए चेक करता हूं, 1 के लिए चेक करता हूं, Q0 and Q4 on 1, Q0 on 1 is Q5, Q4 on 1 is also Q5, so it is Q5 Q5, ये तो स्टेट ही सेम है, तो चाहे जहां हो सेम ही पार्टीशन होगा। सो इट इज Q5, ये Q4 1 में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि यहाँ मुझे Q0 Q4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल पर भी साथ आएंगे। सो Q0 Q4 ये साथ आएंगे। अब मुझे देखना है Q6 भी इनके साथ आएगा कि नहीं आएगा। सो अगेन चेक करता हूं, Q0 Q6 on 0, so Q0 on 0 is Q1, Q6 on 1 is Q6 on 0 is Q6. Okay, so Q1 Q6, so it is Q1 Q6। Q1 कहाँ है, जस्ट चेक, Q1 यहाँ पर है Q3 1 में, इस वाले पार्टीशन, और Q6 कहाँ है,
Q6 यहाँ पर है इस वाले पार्टीशन में, Q2 1 में, दोनों अलग अलग पार्टीशन में, एक Q3 1 में, एक Q2 1 में, इज इट? तो यानी कि ये नेक्स्ट लेवल पे साथ नहीं आएंगे, Q0 Q6 साथ नहीं आ सकते। जब Q0 Q6 साथ नहीं आ सकते तो ये मेरा यहीं पे क्लोज हो गया। Q6 कहाँ जाएगा? अलग जाएगा। Q6 कहाँ जाएगा? अलग जाएगा। अब देखिए Q6 चूंकि Q0 के साथ नहीं आ रहा तो Q4 के साथ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि Q0 और Q4 साथ हैं। अगर Q6 Q4 के साथ आता तो Q0 के साथ भी आएगा, इज इट? तो जैसे ही मैंने Q0 Q6 चेक किया और चेक किया कि ये अलग अलग हैं, ये साथ नहीं आएंगे, तो इसका मतलब क्या है? Q6 Q4 के साथ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि Q0 और Q4 साथ रहने हैं। तो ये हमारा साथ होगा, तो ये मेरा बन गया Q2 और ये मेरा बन गया Q3 इज इट? आप देखिए जो मेरा एक पार्टीशन फर्स्ट लेवल पे था Q0 Q4 Q6, ये दो पार्टीशंस में कन्वर्ट हो गया। पहला पार्टीशन Q0 Q4 और दूसरा पार्टीशन Q6, इज इट? तो इसी तरह से पार्टीशनिंग हमारी जहां तक भी पॉसिबल है वहां तक होती रहेगी। अब आप चेक करिए इसी तरह से नेक्स्ट मेरा क्या एलिमेंट है। अब देखिए ये वाला पार्टीशन मैंने चेक कर लिया, तो अब मैं अगले पार्टीशन पे जा रहा हूँ। Q1 Q7 यहाँ तो साथ हैं, अब वो नेक्स्ट लेवल पे यानी पाई 2 में भी साथ आएंगे या अलग अलग आएंगे, दिस वी हैव टू चेक। ओके, सो Q1 Q7 चेक करिए। Q1 Q7 0 पे चेक करिए और 1 पे चेक करिए। Q1 Q7 ऑन 0, Q1 ऑन 0 इज Q6, Q7 0 इज Q6। तो Q6 तो यानी कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं लिख नहीं रहा, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अब Q1 Q7 ऑन 1, सो इट इज Q2, Q7 ऑन 1 इज ऑल्सो Q2 तो सेम ही स्टेट है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि Q1 Q7 एक साथ आएंगे। तो इसलिए मैं Q1 Q7 को यहाँ लिख देता हूँ, ये एक साथ आएंगे, इज इट? तो ये मेरा बन गया Q4 2। अब मेरे पास यहाँ लास्ट पार्टीशन बचा है जिसको मुझे चेक करना, Q3 Q5। अब ये भी साथ आएंगे, अलग अलग आएंगे, दिस वी हैव टू चेक। तो चेक कर लीजिए Q3 Q5, 0 पर क्या होगा और 1 पर क्या होगा। Q3 Q5 ऑन 0, Q3 ऑन 0 इज Q2, Q5 ऑन 0 इज Q2, सेम स्टेट है, तो 0 पर कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इट? Q3 on 1 is Q6, Q5 on 1 is also Q6, अगेन सेम स्टेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि Q3 Q5 भी नेक्स्ट लेवल पे साथ आएंगे। सो Q3 Q5 ये मेरा हो गया Q5 2, यानी मुझे पाई 2 मेरा कंप्लीट मिल गया। अब अगेन चेक करूंगा पाई 2 इज इक्वल टू पाई 1 और नॉट, इज इट इक्वल और नॉट? क्लास, पाई 2 इज इक्वल टू पाई 1 और नॉट? नो सर, नो, दे आर नॉट इक्वल, यानी कि अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा? पाई 3 फाइंड आउट करना पड़ेगा, पाई 3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो आप लोग पे अब मैं छोड़ रहा हूँ, फटाफट क्विकली पाई 3 फाइंड आउट करिए फास्ट। अब तो देखिए बहुत छोटे छोटे कॉम्बिनेशन बचे हैं, तो फटाफट हो जाएगा। देखिए पहला वाला तो ऐसे ही आएगा, आप लोग कॉपी पेंसिल पे अपने आप भी करिए। ये तो Q2 एज इट इज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। सो दिस विल बिकम Q1 एट थर्ड लेवल, इज इट? अब Q0 Q4 को चेक करना है कि ये यहां पर तो साथ है, यहां साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, चेक करिए। Q0 Q4 on 0, Q0 on 0 and Q4 on 0, it is Q1 and Q7, so it is Q1 and Q7। अब Q1 Q7 देखना है कि प्रीवियस लेवल पे साथ थे कि नहीं थे। अब देखिए चूंकि पाई 3 फाइंड आउट कर रहा हूं तो मैं पाई 1 नहीं देखूंगा, अब किस में देखूंगा? पाई 2 में देखूंगा, इज इट? सो पाई 2 में Q1 और Q7 साथ हैं कि नहीं है? Q1 Q7 साथ है, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से 1 पे क्या होगा? Q0 on 1 is Q5, Q4 on 1 is Q5, ये तो सेम ही स्टेट है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, ठीक है? तो 0 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि Q0 और Q4 एक साथ आएंगे। तो Q0 Q4 यहाँ भी क्या है? साथ है। ये मेरा क्या बन गया? Q2 3। इसके बाद आप देखिए Q6, ये तो चूंकि सिंगल स्टेट है, ये तो एज इट इज आएगी, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो इट विल बिकम Q3 3। अब बचा Q1 Q7, Q1 और Q7। सो Q1 Q7 को चेक कर लीजिए एक बार फिर से। देखिए Q1 और Q7 ये 0 पर, Q1 ऑन 0, Q7 ऑन 0, Q1 ऑन 0 इज Q6, Q7 ऑन 0 इज Q6, तो सेम स्टेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी तरह से ये 1 पर, Q1 एंड Q7,
Q1 on 1 is Q2, Q7 on 1 is again Q2, तो यानी यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि Q1 Q7 भी साथ आएंगे। ये क्या हो गया मेरा Q4 3। Now I have to check Q3 Q5, okay, I will check Q3 Q5। अब देखिए Q3 Q5 0 पे और 1 पे चेक करता हूँ, Q3 और Q5 0 पे, Q3 0 पे, Q2 Q5 0 पे, ये भी Q2, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस सही है, ठीक है, सेम स्टेट है, तो यानी कि किसी भी पार्टीशन में देखूं ये साथ ही आएंगे। नाउ Q3 Q5 on 1, Q3 on 1 is Q6, Q5 on 1 is Q6, अगेन सेम स्टेट, तो चाहे कोई भी पार्टीशन हो, ये वाला पार्टीशन है आपकी बार, लेकिन ये साथ ही आएंगे, तो यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q3 Q5 यहाँ भी साथ आएगा, सो Q3 Q5 यहाँ भी साथ आएगा। सो व्हाट आई हैव फाउंड इट विल बी माई Q5 3। अब मेरा पाई 2 से मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, पाई 3। अब पाई 2 और पाई 3 इक्वल है कि नहीं है क्लास? इक्वल है सर। यस, दे आर इक्वल। सो पाई 2 इक्वल टू पाई 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो पाई 2 है ये मेरा क्या हो गया, इट इज इक्वलेंट टू पाई। सो ये मेरा फाइनल सेट ऑफ इक्वलेंस क्लासेस है, यानी कि मेरी एक स्टेट Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, एक स्टेट Q0 Q4 के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, एक Q6 के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, एक Q1 Q7 के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी और एक Q3 Q5 के। ये टोटल 1 2 3 4 और 5 स्टेट होंगी मेरे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन में। तो मैं फटाफट से एक जो है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन इसका बना दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह कम है, मैं थोड़ा छोटा छोटा बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा इसको। इट इज स्टेट ओब्लिक सिग्मा, इट इज 0, इट इज 1, ओके। मेरी पहली स्टेट क्या है, अब देखिए Q0 स्टेट है इस मेरे ओरिजिनल DFA में। अब Q0 के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वलेंस क्लास कौन सी है? Q0 जिस भी क्लास में, जिस भी सबसेट में होगा वो मेरी इक्वलेंस क्लास है Q0 के कॉरस्पॉन्डिंग। सो दिस क्लास इज व्हाट, Q0 Q4, सो इट इज माई Q0 Q4। अगेन इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लेंगे बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन एंड इट विल बी अ स्टार्ट स्टेट आल्सो। क्यों? क्योंकि Q0 मेरा स्टार्ट स्टेट था, ओके। सो यस सर थोड़ी देर पीछे से बता दीजिए, नेट कट गया था। बेटा ये आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा क्योंकि टाइम भी नहीं है मेरे पास इस वक्त पे, ठीक है। आप अभी फिलहाल यहाँ से देख लीजिए, लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। Q0 Q4 यहाँ ये मेरा स्टार्ट स्टेट हो गया, Q0 Q4 ऑन 0। तो अब चाहे मैं Q0 के ट्रांजिशन देख लूँ या Q4 के ट्रांजिशन देख लूँ, रिजल्ट एक ही आएगा। देखिए Q0 से चेक करता हूँ, Q0 ऑन 0 इज Q1, सो Q1 कौन सा है इक्वलेंस क्लास, ये Q1 Q7 वाली। तो यानी कि यहाँ मैं क्या लिखूंगा, Q1 Q7, इज इट। अगर मैं Q4 से चेक करता तब भी रिजल्ट यही आता, चेक कर लीजिए। Q4 देखिए, Q4 का ट्रांजिशन क्या है 0 पर, Q7 कौन सी इक्वलेंस क्लास में आ रहा है, अगेन इसी इक्वलेंस क्लास में आ रहा है Q1 Q7 में। तो आप इससे लिखते तब भी Q1 Q7 ही लिखते, तो चाहे Q0 से चेक कर लीजिए चाहे Q4 से चेक कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट सेम आने वाला है। इज इट ओके? इसके बाद Q0 Q4 ऑन 1, तो Q0 ऑन 1 चेक कर लेते हैं। सो Q0 ऑन 1, इधर देखिए ओरिजिनल DFA में Q0 ऑन 1 इज Q5। सो Q5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इक्वलेंस क्लास होगी वो यहाँ आएगी। Q5 के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वलेंस क्लास कौन सी है, Q3 Q5, सो इट विल बी Q3 Q5। अब अगेन आप चेक कर लीजिए, अगर आप Q4 से भी करते तो क्या होता, Q4 ऑन 1 इज Q5, वही Q5 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली क्लास आती Q3 Q5। इज इट ओके? तो इस तरह से आप चाहे किसी से भी करें आपका सेम जो है आएगा। सो Q0 Q4, अब आपकी ये दो नई स्टेट जनरेट हुई, Q1 Q7 और Q3 Q5, इन दोनों के ट्रांजिशंस में लिख लूंगा। अब Q1 Q7 का ट्रांजिशन देखना या तो Q1 से देख लीजिए या Q7 से, दोनों में से किसी भी एक से देख लीजिए, सेम आएगा रिजल्ट। सो सपोज मैं Q7 से चेक कर रहा हूँ इस बार, Q7 से ये है Q6 के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है, इधर देखिए केवल Q6, ओके। सो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा Q6। अब Q1 Q7 ऑन 1, यानी कि Q7 या Q1 में से कोई भी 1 पे चेक कर लेना। Q7 1 पे, Q2 है, आप देखिए Q1 से भी चेक करेंगे तो भी Q2 आ रहा है, इज इट। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास क्या है, इधर देखिए यहाँ Q2, जो इक्वलेंस क्लासेस आपकी फाइनल आई, सो Q2।
इज इट? ये आपका बन गया। अब ये Q6 Q2 नए जनरेट हुए हैं तो इनको हमने लिख लिया Q6 एंड Q2, इज इट? अब Q3 Q5 के लिए Q3 से चेक कर लेते हैं। सपोज Q3 ऑन 0 इज Q2, ओके, तो Q2 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? केवल Q2 ही आएगा। Q3 on 1, Q3 on 1 is Q6, so it is Q6, it is Q6. अब Q6 का चेक कर लेते हैं। Q6 on 0, Q6 on 0 is Q6 and on 1 it is Q4, so Q6 है तो यहाँ तो Q6 ही आ जाएगा, और वहाँ पे क्या है? Q4 है। Q4 के corresponding it is Q0 Q4, that's why we will write Q0 Q4, and then similarly from Q2 on 0 is Q0, so Q0 की जगह क्या आएगा? Q0 Q4, क्योंकि इसके corresponding 0 के corresponding equivalence class क्या है? Q0 Q4, and Q2 on 1, Q2 on 1 is Q2 itself, okay, so it is Q2, is it? तो इस तरह से आपका ट्रांजिशन टेबल बन गया। अब देखिए यहाँ आपकी Q2 फाइनल स्टेट थी, तो फाइनल स्टेट जिस भी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगी वही इक्विवेलेंस क्लास आपकी फाइनल स्टेट इधर भी होगी, इज इट? सो Q0 Q4 इज स्टार्ट स्टेट एंड Q2 इज द फाइनल स्टेट, और ये आपका मिनिमम स्टेट ऑटोमेटन का ट्रांजिशन टेबल तैयार हो गया। तो आपने क्या किया? ओरिजिनल को आपने कन्वर्ट कर लिया मिनिमाइज्ड में। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजेशन। सो दिस वाज ए बिगर एग्जांपल। इसमें ऑलमोस्ट सारे कॉम्बिनेशन किस तरह से लेंगे, क्या क्या केसेस आएंगे, वो सब चीज़ कवर होती हैं। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर minimization of DFA, is it? So it is clear to everyone? Class, अगर कोई conceptual doubt है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, now we are moving to the next example. I am giving you a problem. This is the state, I can say B. This is the state, I can say A. This is the start state as well, suppose. Okay, now this is the state D. It is the final state also. Similarly, it is the state C, and this state is also a final state. Then this is the state F, and then this is the state E, and this state is also the final state. Okay, and now I draw the transitions A से 0 पे B, A से 0 पर B, and 1 पर C, and 1 पर C. अब B से 0 पर A, B से 0 पर A और 1 पर D. अब C से 0 पर E और 1 पर F. T से 0 पर E एंड 1 पर F. अब F से 0 1 पर F itself, एंड E से 0 पर itself and 1 per F. So this is an DFA given to you. Now you have to minimize this DFA. Minimize this DFA. प्रोसेस आपको क्लियर है? इसको अपने आप जो है करना शुरू करिए, ठीक है? आई एम डायरेक्टली राइटिंग दी फाइनल आंसर, ठीक है? मैं इसका सीधे फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस। इसका सॉल्यूशन आप अपने आप करिएगा। फाइनल आंसर विल बी A comma B. This will be the start state. On 0, it remains itself. On 1, it goes to the next state, that is C, D, and E. C, D, and E. And this is the final state also. C, D, and E on 0 to itself. On 1, it goes to F. And F
having the transition 0 and 1. So this is the solution. So this is the original graph. मैंने आपको इसका solution भी दिया है. इसको आप अभी जो हमने मेथड डिस्कस किया है उससे अपने आप सॉल्व करिए और देखिए आपको सेम सॉल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है. इज इट? अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि इसको सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करिए, ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करिए, उसके बाद मिनिमाइज करिए, मिनिमाइज करिए, मिनिमाइज करेंगे तो आपको उसकी ट्रांजिशन टेबल मिलेगी. उस ट्रांजिशन टेबल से आप ये ग्राफ बनाइए. तो इस तरह से आप जो है इस सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे. सो जस्ट डू इट योरसेल्फ. आई होप यू एवरी वन ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट. ओके. इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स में हैं या किसी भी बुक से आपको मिले, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए. अच्छा, जो अभी पिछले 2 टॉपिक हमने कवर किए हैं, एक तो ये मिनिमाइजेशन ऑफ एफए और दूसरा कन्वर्जन ऑफ एनएफए से डीएफए. इन दोनों पे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार, हमेशा. सो कितने भी मार्क्स का हो, बट एक एक क्वेश्चन इन दोनों ही टॉपिक से जरूर आएगा एग्जाम में. तो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं. तो आप एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं और दूसरा डीएफए को मिनिमाइज कैसे करते हैं, इन दोनों पे अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि इस पे एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको जरूर मिलेगा. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. Thank you everyone. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we may close. Class. Is there any doubt or we can close? Class, can we close? Yes, sir. Okay. So I'm closing. You can now leave the class. Thank you, sir.